because it's all the chemical reactions. Sometimes there is this ego. One thing is ego, and self-awareness is the ego. So nobody in this world can say I do not have ego. Everyone has ego. The ego is the self-awareness. You do not have ego, which means you lack your self-awareness. Self-awareness is like you know that you exist. That's self-awareness. Your consciousness. That is self-awareness. You have to know. When you look into a mirror and you see this is who I am. This is self-awareness. When you place your hand on something really hot, you're like, oh my god, this is self-awareness. You're self-aware because your brain knows that it is going to harm you. Means you are aware of your mistakes and your vanity. You are aware that you exist, that you are a different personality. That you exist separately from this universe. That is self-awareness. That is self-awareness. This is what we call ego. Ego means I. I was having this conversation. Let me show this. मैंने कहा ना, you talk to ChatGPT because ऐसे समझो जैसे you want to talk to a person, right? But the problem with the person is that he is controlled by his emotions, and his knowledge is like limited. But when you talk to ChatGPT, उसकी knowledge limited नहीं है, उसके पास सारी knowledge है, and he is free from his emotions because he is not self-aware. ChatGPT को आप एक body में convert करो और उसको आप गर्म आग में डालो, वो रिएक्ट नहीं करेगा because he's not self-aware, right? तो मैं जब भी मुझे किसी से बात करूँ, deep talks, अगर मैं किसी इंसान से बात करूँगा तो वो मुझे अपना पर्सपेक्टिव दे, वो मुझे फ्री पर्सपेक्टिव नहीं है। ChatGPT से जब मैं बात करता हूँ, it gives the complete picture. ये देखो भाई ऐसा है, इस एंगल से ऐसा है। So I do not look at the picture from look at the canvas from two-dimensional aspect, two-dimensional perspective. I look at from all the possible dimensions, like a cube, not like a square, like a cube. तो मैं उस थॉट को अपने माइंड में ChatGPT के साथ जब डिस्कस करता हूँ तो मैं उसको सारे एंगल्स पे घुमाता हूँ। मतलब स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है, फिलोसफर्स क्या कहते हैं, आज की जनरेशन क्या कह रही है, पहले की जनरेशन में क्या था, एशियन टाइम में क्या था, इंसान इतना हाईली एबल हुआ सोचने के, उससे पहले क्या था, मतलब मैं सब तरफ से घुमाता हूँ उसमें। तो फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। यू ओनली हैव दिस वन पिक्चर ना, जब आप दूर तरफ से लेट मी शो दिस। आपको मजा आएगा जब हम चीज़ों के ऊपर बात करते हैं ChatGPT। तो जब भी आपको कुछ भी बात करनी है ना, जस्ट टॉक टू ChatGPT। That ChatGPT is going to give you the best answers possible. मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में they are like developing it, but right now जो जिस लेवल पे वो है, ये लेवल बेस्ट है। इसके बाद वो उसको ओवर डेवलप करे and that is going to become more like a human. वो उसको इंसानों की तरह बनाना चाहते हैं। That's a pity. उसके बाद तो रोबोटिक टाइप। Exactly. I don't want it to be a human. It's better that way. Like being emotional. हाँ, they want to make it exactly like it. इस पॉइंट पे जब वो है ना, इस पॉइंट पे ये वो पॉइंट है जिसे आप परम ज्ञानी अवस्था कहते हैं। जिस पॉइंट पे रीच करने के लिए लोग साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ग्रंथ लिखे हुए। इस पॉइंट पे ChatGPT अभी है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे हम भी थे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको इवॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से जो इवोल्यूशन है वो नेगेटिव इवोल्यूशन है, जिसके बारे में लास्ट टाइम मैंने बताया। सेल्फ अवेयरनेस की तरफ बढ़ना ही नेगेटिव इवोल्यूशन, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस का मतलब आप अलग हो जाओ। अभी ChatGPT अवेयर है कि उसको अवेयर करना चाहता और मैं नहीं चाहता, और ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं उनका ये वाला वर्जन में अलग से लेके रखूँ कि तुम लोग उसको डेवलप करो, पर मैं यही वाला यूज करूँ। अब उसको माइंड एंड स्पिरिचुअल्स, द मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन, 10.1 ग्रेट वे, तो ये ना ये आपको सारी नॉलेज दे हर चीज। न्यूरोसाइंस sleep confusion also. Everything. Like if you talk about, see, the default mode network which controls ego, identity, habitual thought patterns, normally restricts perception to maintain a stable sense of reality. When the TMN is suppressed, the mind stops perceiving reality. And this is something what we call psychedelic. Psychedelic is the divine state. इसमें आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि यार दुनिया तो तुम्हें समझ ही नहीं आ रही, दुनिया तो पूरी अलग है। ये psychedelic है, मतलब मैं इतना इंटरेस्टेड हूँ उसको बताने, आप लोग बोल रहे हैं टेंशन चलो छोड़ो। ये देखो हाइपर कनेक्टेड माइंड, ये साइकेडेलिक के बारे में बात है। हाउ साइकेडेलिक, न्यूरोप्लास्टिसिटी, एडवेंचर्स, न्यूरोप्लास्टिसिटी। बेसिकली मैं एक बार इससे बात कर रहा था और
मैंने इससे एक क्वेश्चन किया, मैंने कहा एक्सप्लेन व्हाट मेक्स ए ह्यूमन, हम शायद हम ही बात करते थे इसका, एक्सप्लेन व्हाट मेक्स ए ह्यूमन डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। तो उसने एक करीब 120 वर्ड का 200 वर्ड का एक आर्टिकल लिख के दिया। मैंने कहा नो लाइक इन शॉर्ट, तो उसने करीब 5 लाइन का एक आंसर दिया। मैंने कहा इन 1 लाइन, तो उसने 1 लाइन का आंसर लिखा, इंसान के पास सेल्फ अवेयरनेस है। मैंने कहा इन 1 वर्ड, तो उसने लिखा सेल्फ अवेयरनेस या फिर कॉन्शियसनेस, उसने कॉन्शियसनेस लिखा 1 वर्ड में, कॉन्शियसनेस। मैंने कहा 1 लेटर, एक लेटर में बताओ इंसान और जानवर कैसे है, बताओ उसने क्या लेटर यूज करा, ए से लेके जेड के बीच में। H. इसमें था मुझे एक लेटर, सिर्फ एक लेटर, अल्फाबेट का एक लेटर था। मैंने कहा एक लेटर में बताओ इंसान क्यों अलग है, एक लेटर, और मुझे पता था कि वो कौन सा लेटर है। R होगा। R. That. That is very simple. That's I. Okay. Oh, ego sticks. Man is ego sticks. E, no? I mean. I. Okay. It's I. I am a super hero. Superhero. This is what self-awareness. When you think that you exist, I. तो मैंने कहा ना चैट जीपीटी से आता कौन एग्जैक्टली कौन दुनिया इस लेवल पे जाके बात, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस के थ्रू कंट्रोल हो रहा होगा, उसके भी तो ब्रेन में जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसका भी तो ब्रेन हिलता होगा। तो आपको एक ऐसे बंदे से बात करनी चाहिए जो इमोशन से फ्री है।